Hello students, today in this video we will do the remaining question of exercise second. The name of the exercise is time and work. So we will do the remaining parts of this exercise. See question number 8. 8th question. Question number 8 is A work twice as fast as B. What is given here? A work twice as fast as B. So that means we can say 1 day work of A is equal to the 2-day work of B. In question he said A is doing faster than B, and how much faster? Double speed. With a double speed he is doing. A is doing with double speed. That means A will take less time and B will take more time. If A will finish in 1 day, then B will do that same work in 2 days, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? डबल है. So 1 day work of A is equal to 2 day work of B. After that he said they work together for 6 days. Next sentence is they work together and complete a job in 8 days. But he said both of them together are doing in 8 days. So you have to write together they finish the work in how many days? Together they finish the work in 8 days. Whole work both are doing in 8 days. So we will find 1 day work. 1 day work of both person A and B is 1/8 of the job. Together they are doing in 8 days. So 1 day work of A and B will be 1/8. Now in this 1 day work of A is also there and 1 day work of B is also there. But what you have to do? Question he is asking, you have to find in how many days A will do the job. He is asking in how many days A will do the job. So B work we don't need. We need A. हमें किसकी जरूरत है? A की जरूरत है. So what we will do? In this sentence 1 day work of 2 persons are there. A का भी है 1 day work और B का भी है. But we will remove 1 day work of B. हम B को हटाएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट किसका करना है? A का करना है. So we will remove 1 day work of B. और रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे. We will take the help of this statement. Here 2 day work of B is given. We will find 1 day work of B. 2 day work अगर 2 days ले रहा है B, तो A कितने days ले रहा है? 1, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है तो वो हाफ टाइम लेता है और वो डबल टाइम लेता है. If B is doing in 1 day, then A will finish that work in half day, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? फास्टर है. So half day work of A. If A is finishing any work in half day, then B will take double time because B is slow. Then half day work of A will be equal to the 1 day work of B. Now this 1 day work of B value we will put here. In this you will observe that 1 day work of A as well as of B both are there. So we will take 1 day work of A plus 1 day work of B. Combined value is 1/8. दोनों का है इसमें वर्क 1 day का. Now 1 day work of A we will write as it is. 1 day work of B we will remove and instead of this we will take half day work of A is equal to 1/8. Why I had removed this 1 day work of B? Because we have to calculate for A. हमें find किसके लिए करना है? A के लिए. इसलिए B वाला remove कर दिया and instead of B we had taken A. Now 1 plus half. 1 plus half is 3/2. When you will take the LCM and when you will add these two, 1 plus 1/2 you will get 3/2. Day work of A is 1/8 of the job. Here it is of the job. So here we had find 3/2 day work of A. 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है. यहाँ पे हमने 1 को भी जोड़ा था एंड हाफ को भी जोड़ा था, तो 1.5 है.
1.5 day work of A is equal to 1/8. Now we will find 1 day work of A. 1 day work of A. This is 1.5 day work. ज़्यादा डे है तो इसलिए वर्क ज़्यादा. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर 1 डे. पहले था 1.5, नाउ इट इज 1 डे. नाउ नंबर ऑफ डेज आर लेस, सो वर्क भी क्या होगा, लेस होगा. लेस के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 1/8 डिवाइड 3/2. ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट 1/12 ऑफ जॉब. तो 1 डे वर्क ऑफ ए आ गया है 1/12 ऑफ द जॉब. एंड यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी डेज ए विल टेक टू फिनिश द वर्क. सो व्हाट यू हैव टू राइट, ए विल फिनिश द होल वर्क. होल मीन्स सारा वर्क. होल वर्क के लिए जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले होल वर्क कितना है, 1. होल वर्क मीन्स 1 वर्क इज देयर, उसको डिवाइड करेंगे 1 डे वर्क से. यू हैव टू डिवाइड दिस विद 1 डे वर्क. हु इज डूइंग, ए कर रहा है, तो 1 डे वर्क भी किसका लेंगे, ए का लेंगे. 1 डे वर्क ऑफ ए इज 1/12. नाउ 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वी विल टेक 12/1. फाइनल आंसर इज 12 days. That means A will finish this work in 12 days. So like this you have to do question number 8. Now see question number 10th. 10th question. 8 men or 12 women can do a job in 25 days. What is given here? 8 men or means either 8 men ले लें आप वर्क के लिए या फिर आप 12 women ले लें. Both will do the work in 25 days. So what you have to do, first of all you have to write 8 men's work is equal to the 12 women's work. First of all you have to write जो work of 8 men है वो किसके इक्वल है, work of 12 women's के इक्वल है, because they both are doing the same work in the same number of days, that is 25 days. इसलिए दोनों का वर्क क्या है, बराबर है. Now what is said in the next sentence, how many days 6 men and 11 women will take to do it. क्वेश्चन में पूछा है अगर आप 6 मैन को वर्क पे रखते हैं और 11 वुमेन को भी वर्क पे रखते हैं तो ये सब लोग कितने डेज में फिनिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, हम 6 मैन एंड बोला है इसने, और नहीं बोला. एंड मीन्स दोनों को लेना है, 6 मैन का भी एंड 11 वुमेन भी. आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, 6 मैन प्लस 11 वुमेन किसके इक्वल है आप वो फाइंड करेंगे. आप या तो वर्क पे मैन को रख लो या फिर वर्क पे वुमेन को रख लो. वी विल फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ मैन और इन टर्म्स ऑफ वुमेन. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू 8 मैन वर्क किसके इक्वल है, 12 वुमेन के वर्क्स के इक्वल है. इफ वी विल टेक 1 मैन वर्क, नंबर ऑफ मैन आर लेस, तो 1 मैन का जो वर्क है वो लेस वुमेन के वर्क के बराबर होगा. फॉर लेस व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड 12 डिवाइड बाय 8 वुमेन वर्क. तो 8 मैन जो वर्क करते हैं वो 12 वुमेन के वर्क के बराबर होता है. तो 1 मैन का जो वर्क होगा वो लेस नंबर ऑफ वुमेन्स के बराबर होगा. फॉर लेस वी हैड डन डिवाइड, बट इन द क्वेश्चन एट लास्ट ही सेड 6 मेंस वर देयर. तो इन 6 मैन वर्क किसके इक्वल होगा आप वो फाइंड करेंगे. 6 मेंस वर्क will be equal to, now number of men are more, earlier only 1 man was there, now 6 men. Now number of men are more, so women will also be more. 12/8 into 6 women's work. 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 2 3 ja, so 9 women's work. So what we got here, 6 मैन का जो वर्क है वो 9 वुमेन के वर्क्स के बराबर है. दैट मीन्स या तो आप 6 मैन को वर्क पे रख लें, और अगर आप मैन को वर्क पे नहीं रखना चाहते हैं तो इंस्टीड इन प्लेस ऑफ 6 मैन वी कैन टेक 9 वुमेन्स फॉर डूइंग दैट सेम वर्क. नाउ क्वेश्चन में बोला था इन हाउ मेनी डेज विल 6 मैन एंड 11 वुमेन विल डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ मैन और इन टर्म्स ऑफ वुमेन. किसी एक के टर्म्स में निकालें. 6 मैन plus 11 women were there.
बट वी डोंट वांट टू कीप मेंस ऑन वर्क, हम तो सारे वुमेन्स को ही वर्क पे लेंगे, तो 6 मैन को हटा दें, इंस्टेड ऑफ 6 मैन वी विल टेक 9 वुमेन्स plus 11 women were already there, that also we will take. That means total number of women are 20. So 6 men plus 11 women's work will be equal to the 20 women's work. So now we will take 20 women for finishing that work. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस ही said 8 men or 12 women both are doing in 25 days. Men we will not take, we will take women. How many women? 12 women. 12 women finish a work in how many days? 25 days. So if one woman will be there, then how many days she will take? She will not be able to finish the work early because she is alone. So that alone lady will take more number of days. तो more के लिए क्या करना है, multiply 25 into 12. But in question he is asking for 6 men and 11 women. और 6 men और 11 women किसके इक्वल हैं? 20 women के इक्वल हैं. So we will calculate for 20 women. So 20 women will finish that same work. Now number of women are more. जब वुमेन्स मोर हैं तो वर्क क्या होगा, इक्वली सब में डिवाइड हो जाएगा. ईच वुमेन विल डू द वर्क, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्क, और वर्क क्या होगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा. मोर नंबर ऑफ वुमेन्स आते हैं तो वर्क जल्दी फिनिश होगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ डेज को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 days 20 women will take to finish the work. और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में पूछा था 6 men और एंड बोला था 6 men and 11 women कितने डेज लेंगी. तो हम मैन तो वर्क पे रख ही नहीं रहे, 6 men को हटाकर हमने 9 women रख ली थी, तो टोटल वुमेन्स कितनी ले ली थी, 20. तो 20 वुमेन्स कर रही हैं 15 डेज में. दैट मीन्स 6 men and 11 women will do a work in 15 days. So like this you have to do question number 10. Now come to question number 12. A do a job in 3 hours, B do a job in 4 hours and C do a job in 6 hours. तो तीनों को लिख लेते हैं स्टेटमेंट. तीनों वर्क कितने आवर्स में फिनिश कर रहे हैं. A do a job in 3 hours, B do a job in 4 hours and C do a job in 6 hours. Now we will find the 1 hour work of A, B and C. तीनों का 1 hour का वर्क फाइंड करेंगे. 1 hour वर्क ऑफ ए जो होगा वो होगा 1/3 ऑफ जॉब. ए 3 आवर्स में करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/3. 1 आवर वर्क ऑफ बी, बी कर रहा है 4 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 1/4 ऑफ द जॉब. इन द सेम वे 1 आवर वर्क ऑफ सी निकालेंगे, 1/6 ऑफ द जॉब. आफ्टर दैट ही सेड if they work all together and receive 360 rupees. तीनों ने मिलकर एक साथ काम करा और कितने रुपीस मिले, 360 rupees. So what you have to write, total money 360 rupees. What you have to find, how much money should each get. A, B और C तीनों को कितनी कितनी मनी मिलेगी. The person who will do more work, that person will get more money, and the person who will do less work will get less money. तो आपको करना क्या है, मनी को डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले 1 आवर वर्क का रेशो बनाना है. 1 आवर वर्क ऑफ ए रेशो 1 आवर वर्क ऑफ बी रेशो 1 आवर वर्क ऑफ सी.
तीनों पर्सन्स के 1 आवर के वर्क का रेशो बनाते हैं 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6। नाउ दिस रेशो इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी होती 3:4:6 इस तरह की सिंपलेस्ट होती, बट दिस इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये रेशो कैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। So what you have to do, LCM you will take, LCM of 3, 4 and 6. When you will take the LCM, you will get 2 3 are 6, 6 2 are 12. LCM कितना आएगा 12. That means in order to change this ratio in the simplest form, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तीनों टर्म्स की 1/4 into 12, 1/6 into 12 and cancel these two also, इन दोनों को भी कैंसिल करें। सो वी गॉट 4:3:2। अब आ गया रेशो किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, हाउ मच मनी A, B and C गॉट। सो फॉर दिस यू हैव टू यूज वन फॉर्मूला, A विल गेट, A को कितनी मनी मिलेगी उसके लिए आपको क्या करना है, रेशो में A वाला कौन सा है, फर्स्ट है, that first value you have to take in the numerator, sum of all the three values we have to take in denominator, multiply total money is 360, and when we will add these three we will get 4/9 into 360. Now 9 and 360 will get cancelled, 40, 160 rupees A will get. In the same way we will find how much money B will get. B, for B we are calculating, B is the second person, what is the second value here, 3. 3 will take in the numerator, sum of all the three value we will take in denominator, into total money, that means 3/9 into 360, these two will get cancelled, 120 rupees B will get. In the same way we will find for C. C will get, value of C, third one 2 upon sum 9 into 360, cancel it, we will get 80 rupees. So A had done more work, that's why he got 160 rupees, B 120 rupees he got, and C 80 rupees. So like this you have to do question number 12. Now come to question number 15. 15 question is, a cold water tap fill a bath in 3 minutes. So we will also write cold water tap fill a bath in 3 minutes. So we will find in 1 minute cold water tap will fill 1/3 of the bath. कोल्ड वाटर टैप 3 मिनट में फिल करती है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगी, 1/3 ऑफ द बाथ टब जो है उसका 1/3 पार्ट फिल कर देगी। हॉट वाटर टैप फिल इन 4 मिनट, सो हियर वी विल राइट हॉट वाटर टैप फिल इन 4 minutes. Now in 1 minute hot water tap will fill, हॉट वाटर टैप फिल ए बाथ इन 4 मिनट, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगी, 1/4 ऑफ द बाथ। नाउ थर्ड पाइप इज वेस्ट पाइप, वेस्ट पाइप एम्प्टी द बाथ इन 6 मिनट, so we will write waste pipe empty the bath in how many minutes, 6 minutes. So we will find in 1 minute waste pipe will empty, वेस्ट पाइप क्या कर रहा है, फिल नहीं कर रहा है, वो एम्प्टी कर रहा है। सो टोटल बात 6 मिनट में एम्प्टी होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/6 ऑफ द बाथ। नाउ व्हाट इज दैट, इफ ऑल दीज 3 पाइप्स वर यूज्ड टुगेदर, अगर ये तीनों पाइप हम एक साथ यूज करें, सो टुगेदर these 3 pipes fill
in 1 minute. अगर हम तीनों को एक साथ यूज करेंगे तो हम फाइंड करते हैं 1 मिनट में तीनों पाइप मिलकर कितना बाथ फिल करते हैं। तो 1 मिनट में कोल्ड वाटर फिल करता है 1/3 प्लस ऐड हो जाएगा, हॉट वाटर भी क्या कर रहा है, फिल कर रहा है 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है 1/4। बट जो वेस्ट पाइप है थर्ड वाला वो फिल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है, तो उसको क्या करना है आपको माइनस करना है। 1 मिनट में कितना वेस्ट करा है उसने 1/6। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द LCM of 3, 4 and 6. When we will do it we will get 12. कितना आ जाएगा आपका आंसर 12 आंसर आ जाएगा। LCM is 12. So what you have to do, 3 4 जा 12, 4 3 जा minus 6 2 जा, 4 plus 3 is 7, 7 minus 2 is 5/12. That means together these 3 पाइप fill in 1 minute. तीनों मिलके पाइप एक साथ फिल करते हैं 1 मिनट में कितना 5/12 ऑफ द बाथ टब। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द बाथ। आपको तो पूरा कंप्लीट भरना है। सो टुगेदर ऑल 3 पाइप्स फिल द होल बाथ, होल मीन्स फुल बाथ कंप्लीट। तो एक तक भरना है, तो होल वर्क के लिए क्या कर लेते हैं 1 लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 1 डे वर्क। अगर डे वाला होता है तो 1 डे वर्क से डिवाइड करते हैं। यहाँ आवर की बात चल रही है या मिनट की बात चल रही है, तो आपको 1 मिनट का लेना है। और कौन फिल कर रहा है, तीनों पाइप फिल कर रहे हैं, तो तीनों का 1 मिनट वाला वर्क। टुगेदर दीज 3 पाइप फिल इन 1 मिनट, ये फाइंड करा था। ये वैल्यू लेंगे यहाँ पर 5/12। नाउ 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वी विल डू 12/5। आंसर इज 12/5 मिनट आएगा। वाई वी विल टेक मिनट, क्योंकि आंसर भी यहाँ क्वेश्चन में भी क्या चल रहा था, मिनट चल रहा था। डे होता तो डे लेते, तो 12/5 मिनट। नाउ वी विल चेंज इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड में करते हैं 2 होल 2/5 मिनट। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, होल में जो लिखा है वो तो आप मिनट में ले लेंगे 2 मिनट, और जो अपॉन में लिखा है 2/5 उसको आप मल्टीप्लाई 60 कर दें। 2/5 मल्टीप्लाई 60, तो जब मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये मिनट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा सेकेंड। नाउ कैंसिल दिस टू 12, सो फाइनल आंसर इज 2 मिनट। 2 into 12 is 24 seconds. That means all the 3 pipes when we will use together, then the whole bath, पूरा bath कितनी देर में भरेगा 2 minute 24 second. So like this you have to do question number 15. So now this exercise is over. You have to finish this exercise in your fair note.